ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر رضوان احمد خان کی ہدایت پر ضلع کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ بھیرا نوید اکرم نے سب انسپکٹر توقیر عباس و دیگر ملازمان پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ بھیرا انٹرچینج پر دوران چیکنگ کار نمبر PK/886 پر سوار مردان کے رہائشی ملزم معظم علی کو روک کر چیک کیا تو کار کے خفیہ خانوں میں سے ایک رافل MM، ایک رافل بور، 5 پسٹل 30 بور جبکہ کار نمبر /268 میں سوار ملزم فیاض احمد سے 2 کلاشنکوف، متعدد میگزین اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزمان یہ اسلحہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں فروخت کے لیے لے جا رہے تھے۔ اسی طرح ملزم عمر فاروق سے بند وقت 12 بور پمپ ایکشن بھی برآمد کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے اور سمگل کرنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ سرگودھا ہفتہ وار چھٹی ختم کرنے کے فیصلے پر بینک ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ سید اون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق نجی بینک ملازمین کا فیصلے کے خلاف سرگودھا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے میں درجنوں بینک ملازمین کی شرکت۔ شدید نعرہ بازی۔ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ حکومت فن الفور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور چھٹی بحال کرے۔ اگر ہماری چھٹی بحال نہ کی گئی تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ احتجاجی مظاہرین۔ بینک ملازمین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاجی نعرے درج تھے۔ حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر بہاڑی میں بھی نون لیگ کے کارکنان انتہائی پرجوش ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ نون لیگی کارکنان حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہوئے مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہی ملک و قوم کو مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ آج پنجاب میں نون لیگ کی کامیاب عوام کی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI کے ارکان اسمبلی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونا نااہل ٹولے کے منہ پر تو اونچا ہے۔ اب انشاءاللہ نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر حویلی سید اشفاق گیلانی کی ہدایت پر سندھ کمشنر ہیڈ کوارٹر سید نصرت گردیزی کا ہمراہ پولیس کا ہوٹا بازار کا دورہ سبزی فروٹ سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ خوردونوش اشیاء کی کوالٹی اور معیار کو چیک کیا گیا اور تاجران کو ہدایت کی ریٹس کوالٹی اور معیار پر کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاپرواہی کے مرتکب تاجران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رمضان المبارک ہم سب کی بھلائی کا درس دیتا ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنا جائز منافع رکھیں اور جو ریٹس دیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ صادق آباد کے علاقے سنجرپور شیرپاک کے مقام پر پرانے جلانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلوں اور زہریلے دھواں نے افطاری کے وقت اہل علاقہ کو پریشان کر دیا۔ ریسکیو کو اطلاع ملتے ہی بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد سلیم آسی بھی موقع پر پہنچ گئے اور فیکٹری کو سیل کر دیا اور فیکٹری کو مکمل بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے تاکہ اہل علاقہ سکھ کا سانس لے سکے۔ ضلع مالاکنڈ تحصیل درگی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہے، جو خان صاحب کی تقریر ہے۔ ایری نیوز کے ذریعے لائیو سکرین پر چلے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اظہار سواتی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں ضلع مالاکنڈ تحصیل درگی میں موجود ہوں۔ یہاں پر PTI کا جلسہ شروع ہے اور ابھی کچھ دیر بعد خان صاحب کا جو اسپیچ ہے وہ کچھ دیر بعد ایئر وائی نیوز کے ذریعے سے جو لائیو ویڈیو ہے وہ اسکرین پر دکھائیں گے۔ یہاں پر PTI کے کارکن بھی بڑے تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ سابقہ MLA جنید اکبر صاحب بھی موجود ہے اور جو موجودہ MP ہے پیر مصور خان غازی صاحب وہ بھی موجود ہے، جو ابھی کارکن سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ابھی ایئر وائی نیوز کا جو لائیو ہے وہ ہم اسکرین پر دکھائیں گے۔ جی ہرنائی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر PDM اور امریکہ کے خلاف احتجاجی ریلی و مظاہرہ۔ احتجاجی ریلی پارٹی کے ضلعی دفتر سے ضلعی صدر صدام ترین کی قیادت میں نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں نوجوانوں سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تحریک انصاف کے احتجاجی ریلی شہر کے مختلف شاہراہوں سے راستوں سے ہوتا ہوا مین چوک پر پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ سے پارٹی کے ضلعی کے صدر صدام ترین نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرتے ہیں عمران خان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ختم کیا گیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بہاولنگر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کے زیر صدارت میونسپل کمیٹی ہال میں مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنجاب سٹی پروگرام کے تحت مختلف پراجیکٹس کی ترجیحات کو حتمی شکل دی گئی۔
इस मौके पर DPO मोहम्मद जफर बुजदार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और मुताल्लिका महकमों के अफसरान, सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां बाग जिना ग्राउंड में PTI का जलसा, लाइट्स के लिए लगाया गया स्टैंड गिर गया। स्टैंड पर जरूरत से ज्यादा शुरका चढ़ गए थे। इब्तिदाई तौर पर 3 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्टैंड गिरने के बाइस जख्मी होने वाले 2 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान के साथ साथ PDM जमातों के जिम्मेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। सब ने मिलकर मुबारकबाद का केक काटा और PDM और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब की मेज़बानी सदर मुस्लिम लीग जदा चौधरी नवीद गुज्जर ने की, जबकि सदारत कायम मकाम सदर फारूक अंजुम ने की और तकरीब के मेहमान खुसूसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खां थे और निज़ामत के फ़राइज़ चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम गुज्जर ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर, सरपरस्त आला मासूद अहमद पूरी, कायम मकाम सदर फारूक अंजुम, जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद आराइन, चीफ ऑर्गेनाइजर राजा कमाल, सीनियर नायब सदर चौधरी वहीद, नायब सदर चौधरी सकलैन गुज्जर, सदर जदा बॉडी चौधरी नवीद गुज्जर, नायब सदर मियां रिजवान उल हक, जनरल सेक्रेटरी उम्र मासूद पूरी, सदर मदीना मुनव्वरा मियां अरशद और दीगर ने पार्टी तरानों पर कारकुनान से नारे लगवाए और कहा कि मियां शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने से मुल्क में गुरूर, तकब्बुर और कौमी रहनुमा की किरदार कशी की सियासत का खात्मा हो गया है। अब कौम फिर से एक बेहतर खुशहाल पाकिस्तान देख सकेगी और ओवरसीज के मसाइल अब नारों से नहीं अमली तौर पर हल होंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बाबा फरीद की धरती पाकपत्तन में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की हिदायत पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। शहर फरीद के दिल नगीना चौक में कप्तान से इजहार यकजहती करते हुए अवाम का समंदर उमड़ आया। खिलाड़ियों ने अमरीकी डॉलर नजर आतिश करके पैरों तले रौंद कर अमरीका को नोट का पैगाम भी दिया। चेयरमैन इमरान खान की काल पर पाकपत्तन के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। कराची जलसा लाइव दिखाने के लिए शहर के दिल नगीना चौक में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। हजारों खिलाड़ी कप्तान से इजहार यकजहती करते शदीद नारेबाजी करते रहे। पार्टी परचम के साथ पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। ननकाना साहिब में सिख बरादरी का मजहबी त्यौहार बैसाखी मेला रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया भर से आए हुए सिख यात्रियों ने अवाम की बेपनाह मोहब्बत और बेहतरीन इंतजामात करने पर ज़िलाई इंतजामिया व हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल जी। नसर इकबाल, किया अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में। यहाँ पर आज बैसाखी मेला का तीसरा और आखिरी रोज़ है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सिख यात्री। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क़याम के दौरान उनके क्या जज्बात थे और उनको कैसे इंतजामात मिले और वो कहाँ तक पाकिस्तान हुकूमत के मुतमिन है। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜੱਥਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਦਿਲ ਰੂਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੂਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗਲ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो हमें प्यार और मोहब्बत मिला है, एक ऐसा अनजाना प्यार है जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि हमें जो है वो यहाँ पे संगतों को आने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुदेव जी के दर्शन कर सकें। जी। हरनाई माह रमज़ान में जहां लोग चटपटे और नमकीन पकवान पसंद करते हैं, वहां मीठी जलेबी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। माह रमज़ान में रात को दूध जलेबी खाने से जिस्मानी तवानाई हासिल होती है। जानते हैं हरनाई से शाफहद की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान में जहां लोग चटपटे और नमकीन पकवान पसंद करते हैं, वहीं मीठे में दूध जलेबी की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जिसको जिस्मानी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका शुमार पहलवानी खुराकों में भी किया जाता है। माह रमज़ान में दूध जलेबी खाने से जिस्मानी तवानाई हासिल होती है। माह में जलेबियाँ खाने का एक अपना ही मज़ा है। आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ में इंसान सारा दिन जो है भूख प्यास से नडाल हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और शाम को जब हम दूध में गर्मा गर्म जलेबियाँ डाल कर खाते हैं तो सारे दिन की जो खोई हुई तवानाई है वो बहाल हो जाती है। तो हम हमेशा यहाँ आते हैं, जलेबियाँ ख़रीदते हैं। इसकी जलेबियाँ बहुत बेहतरीन गर्म और खुश जायका हैं। तो मेरी तजवीज़ है कि आप भी जो है रमज़ान शरीफ में जब तवानाई की कमी महसूस करें तो दूध में गर्म गर्म जलेबी डाल कर खाएँ। मेहरबानी। अच्छी जलेबी है, अच्छे मटेरियल से बनी हुई है। सब लोग जो ना रमज़ान में मीठा खाना पसंद करते हैं। 10 साल पुरानी दुकान है मेरी, मैं जलेबियाँ बेच रहा हूँ और ख़ासकर थोक वाले ज़्यादा हैं। स्पिन तंगी से लेके उड़ीस तक, शारक से लेके जरगुन घर तक जो मेरे पेड़ी वाले सारे आते हैं, मेरे से जलेबियाँ ले जाते हैं। और 8 से 10 कारीगर मेरे लगे हुए हैं, अंदर काम कर रहे हैं। बामुश्किल में माल नहीं पहुँचा सकता, मुश्किल से माल पहुँचता है। खुशबूदार जलेबियाँ, इंशाल्लाह रसगुल्ला भी खाओ, उसके बाद मेरी जलेबियाँ भी खाओ। इंशाल्लाह मेरी जलेबियों का जो है ना पलड़ा भारी रहेगा इंशाल्लाह। यूं तो बलकाती जलेबी ज़िंदगी के पेच व ख़म को ज़ाहिर करती है, लेकिन शीरा टपकती जलेबी की मिठास बताती है कि ज़िंदगी नमकीन ही नहीं मीठी भी है। शाफैद, TNN न्यूज़, हरनाई। ओकाड़ा के इलाका मौजाजानपुरा की रिहायशी 17 साला घरेलू मुलाजिमा के साथ जमींदार का साथियों के हमरा कई माह तक गैंग रैप। FIR के मुताबिक मुलजिम अशफाक उर्फ शाकू काम के बहाने जिला शेखुपुरा लेकर गया था। अशफाक 8 माह कबल मुतासिरा लड़की के वालिद लियाकत के पास आया और घरेलू काम के लिए लड़की की ज़रूरत है, इस बात का इसरार किया। लियाकत अली मेहनत किश की 17 साला बेटी सल्लमा बीबी को घरेलू काम के लिए जिला शेखुपुरा ले गया। मुलजिम अशफाक अपने 4 साथियों के हमरा कई माह तक गैंग रैप का निशाना बनाता रहा। ज्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ किसी को बताने पर कत्ल की धमकियां देते रहे। मुलजिमान के पास से 2 माह बाद जब बेटी को लेकर आया तो वो हामिला थी। बेटी ने मुलजिमान के जुल्म और सितम से मुताल्लिक अपनी वालिदा को बताया, जबकि मेरी बेटी अब 8 माह की हामिला हो चुकी है। 5 मुलजिमान के खिलाफ वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या में मुलव्वस ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। जफराबाद में लगाए गए रमज़ान सस्ता बाजार भी आवाम को रिलीफ न दे सका। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, लेकिन ताजिरों ने रुल्फ देने का देवो किया है। देखते हैं जाफराबाद बलूचिस्तान से मिस्री बुकटी की ये रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, नाम सस्ता बाज़ार, लेकिन यहाँ चीज़ें महंगी मिल रही हैं। गंदगी और कचरे के ढेर में लगाया गया ये सस्ता बाज़ार शहरियों को किस हद तक रिलीफ फराहम कर रहा है, लोग किस हद तक ख़रीदारी कर रहे हैं और कितना खुश हैं, इस हवाले से हम यहाँ ख़रीदारी करने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ के जो अंजुमन ताजरान हैं उनकी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये सस्ता बाज़ार गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया है या ताजर अपनी मदद आपके तहत शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सस्ते बाज़ार का सिर्फ नाम चल रहा है और सस्ते बाज़ार में आप आकर देखें, उधर टमाटर तो आप दिखाएं कैसे टमाटर चल रहे हैं, आप आलू तो दिखाएं वहाँ पर कौन से आलू चल रहे हैं। भाई कीड़े लगे हुए हैं टमाटरों को, वो आलू खाच में आलू जो चलते हैं ना चापों में, वो आलू चला रहे हैं। यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ सस्ते बाज़ार का सिर्फ ड्रामा है, सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वही है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जुल्म चल रहा है, वही जुल्म हमारे साथ चल रहा है। कोई भी हमें गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके विज़िट करें, खुद आएँ, आप देखें आकर यहाँ पर कि ये गरीबों के साथ क्या जुल्म चल रहा है। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई सस्ती बाज़ार का सिर्फ नाम है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से अंजुमन ताजरा डेरा अलियार की तरफ से सस्ता इतवार बाज़ार अंजुमन ताजरा ने लगाया है।
लोगों को 10 से 20% तक जो है हम जो रिलीफ दे रहे हैं, और चीनी जो है 75 रुपये में दे रहे हैं। चाय के ऊपर 50 से लेकर 100 रुपये तक 1 किलो के ऊपर जो है हम जो रिलीफ दे रहे हैं। सरकार से नहीं है, हमने अंजुमन ताजरान की तरफ से लगाया हुआ है, किसी में किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। हमने खुद अंजुमन ताजरान की तरफ से माह रमज़ान के महीने में हम जो गरीबों को जो रिलीफ दे रहे हैं। यकीनन ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ के जो गरीब आवाम है इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की जानब से सिर्फ यहाँ टेंट फराहम कर दिए गए हैं और टेबल फराहम कर दिए गए हैं। बाकी जो ये सस्ता बाज़ार लगाया गया है ताजरों के मुताबिक ये उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगाया है ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मिस्री बुगटी, TNN न्यूज़, जाफराबाद। Road, Sahibal, a residential